Welcome to economics class. Today we will discuss about the perfect competition. Dear students, there are four different market forms, but in your syllabus there is only one market form, that is perfect competition. Before starting discussing about the features of perfect competition, let us discuss what is market. Market is a place where the sale and purchase of commodity take place. It may be a visible place, and in this present scenario, it may be an invisible place. Or you can say there may be a direct contact between the seller and buyer, and it may be possible in this present scenario where online transactions or online marketing has taken a predominating role in our economy. There may be इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेलर एंड बायर. आप कई बार देखते हो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उसमें सामान मंगवाते हैं. मीन्स आई एम अ बायर, लेकिन वो सामान मुझे डायरेक्ट सेलर से नहीं मिलेगा. इट मे बी पॉसिबल फ्रॉम द मिडल मैन, यहाँ से वहाँ से कहीं से उसको उठाया जाएगा और मेरे तक सामान पहुँचेगा. सो इस प्रेजेंट सिनेरियो में मार्केट की डेफिनेशन चेंज हो जाती है. नाउ द डेफिनेशन ऑफ मार्केट इज़ it is a place where the seller and buyer may come in direct contact or may not come in the direct contact. That is the direct or indirect contact between the buyer and seller. So this is all about the market. Now let's start about the perfect competition. Which perfect competition is a market form where there are large numbers of buyers and sellers, and most important thing is that there are large number of buyers and large number of sellers. Because there are large number of buyers, that's why an individual seller or an individual buyer cannot influence the market price of the commodity. अभी हम परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स को स्टडी करेंगे. यू विल बी स्ट्रेंज टू अंडरस्टैंड कि कभी ऐसी मार्केट भी होती है. मतलब जो फीचर्स हम करेंगे, दीज आर नॉट कॉमन फीचर्स. आज जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का चल रहा है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में दैट इज़ अ परफेक्ट कंपटीशन. तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स में थोड़े से फीचर्स आपको फैमिलियर नहीं लगेंगे, बट परफेक्ट कंपटीशन भी प्रिवेल करता है इन सर्टेन एरियाज. टुडे आई विल गिव यू the examples related with this perfect competitive market form. Let's start the topic. Now, the first feature, large number of buyers and sellers. There are large number of buyers and sellers in a perfect competitive market. The number of sellers is so large that no individual firm owns the control over the market price of the commodity. Now, due to large number of sellers in the market, there exists a perfect and free competition. Let me explain the concept. देखो बेटा, एक इकॉनमी में एक ही प्रोडक्ट को, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, तो एक कमोडिटी, एक ही जैसी कमोडिटी मार्केट में बिक रही है. ये आपको एक, अभी आज हम इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, लेकिन एक ही कॉमन सा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है ये कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस लेवल फ्री मार्केट इकोनॉमी में डिटरमाइंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. मार्केट डिमांड इज एन आस्पेक्ट ऑफ द बायर्स वाइल द मार्केट सप्लाई इज एन आस्पेक्ट ऑफ सेलर्स. अब क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं तो एक इंडिविजुअल सेलर मार्केट सप्लाई को अफेक्ट नहीं कर पाता, इसी वजह से उसका प्राइस पर भी कोई कंट्रोल नहीं होता. मीन्स वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. Similarly, there are large number of buyers. That's why an individual buyer cannot have any influence on the market demand. Hence, there is no control of a buyer on market price. यहाँ से हमने ये implication निकाला कि एक, because there are large number of buyers and sellers, that's why an individual buyer or an individual seller cannot influence the market price. Got the concept? Move to the next point. This is about the homogeneous product. This is very, very important. Homogeneous means the identical. Identical means the similar. All the firms in a perfect competition or competitive market produce similar products, identical products or homogeneous product. The products produced are identical in shape, in color, in working, etc. जैसे हम बात करें
कि रेड कलर का पेन प्रोड्यूस कर रही है पेन इंडस्ट्री में सभी फर्म्स, रेड कलर का पेन है, गोल्डन कलर की कैप है, ऑल द फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग द सेम कमोडिटी। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा हमें परेशान करता है कि ऐसी कौन सी मार्केट फॉर्म होती है जहाँ पर सारे प्रोडक्ट होमोजीनियस होती हैं ऐसी चीज़ें। जैसे हम एग्जांपल लेना चाहें पोटैटोज़ के बारे में, तो पोटैटोज़ क्या है, एक ऐसी मार्केट है जिसमें सभी पोटैटोज सेम होते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कुछ छोटे हैं, कुछ लाल हैं, कुछ मोटे हैं, लेकिन ओवरऑल पोटैटोज सेम होते हैं। इसी तरह से हम मिल्क का नाम इससे दे सकते हैं, इसी तरह से हम अनियन का बेस में दे सकते हैं। सो दीज आर द होमोजीनियस प्रोडक्ट। नाउ बिकॉज व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस होमोजीनियस प्रोडक्ट? Because all the firms in the market are selling homogeneous product, that's why there is no reason or no point of a firm to sell its product at higher price level, क्योंकि वो बेच ही नहीं सकता। अगर सेम प्रोडक्ट एक फर्म 500 रुपीज़ पर यूनिट बेच रही है तो दूसरी फर्म 500 से ज़्यादा बेच ही नहीं सकती, बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट्स आर similar or homogeneous. So what is the implication of homogeneity of product? The seller or the firm remains, uh, the firm or the seller remains or you can say the price of the commodity is determined by the firm, by the industry, not by the firm, and the firm remains the price taker. प्राइस मेकर कौन है? इंडस्ट्री। और फर्म क्या है? प्राइस टेकर। आगे हम इसको और डिस्कस करेंगे। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज फ्री एग्जिट एंड एंट्री ऑफ द फर्म। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फर्म्स टू एंटर, दैट इज टू ज्वाइन, और टू लीव द इंडस्ट्री। जब उनका मन करे वो इस इंडस्ट्री को छोड़ सकती हैं और जब उनका मन करे उसको ज्वाइन कर सकती हैं। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। नाउ इन द लॉन्ग रन देयर इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। बच्चे यहाँ ध्यान रखना, शॉर्ट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पर एंट्री और एग्जिट मुश्किल होती है, बिकॉज इट इज़ वेरी शॉर्ट। और लॉन्ग पीरियड एक ऐसा टाइम होता है जिसमें फर्म्स ये डिसाइड करती हैं वेदर टू रिमेन इन द इंडस्ट्री और टू लीव द इंडस्ट्री। सपोज करिए मैं एक फर्म है मेरी और मैं पेन इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉफिट, मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं सारा अपनी मशीनरी को समेट कर शर्ट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री में शिफ्ट कर सकती हूँ। मीन्स देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। हाउएवर इन द शॉर्ट रन सम फिक्स्ड फैक्टर्स obstruct the pre-entry and exit of the firm. This ensures that all the firms in the long run earn normal profit or zero economic profit that matches the opportunity cost of the firms either to continue production or to shut down. अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में। इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए। प्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। बच्चे होता क्या है, अभी लास्ट में हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि हु इज़ द प्राइस मेकर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। कीप इन योर माइंड एन इंडिविजुअल फर्म cannot determine the price level. That's why who is the price maker? The industry is the price maker. And how the price of the commodity is determined under perfect competition? The price of the commodity is determined through the market forces of demand and supply under perfect competition. The firm, an individual firm or an individual seller is just a price taker. Clear? अब हम यहाँ पर इसको डिस्कस करें कि प्राइस डिसाइड हो गया, एक फर्म उससे ज़्यादा पर नहीं बेच सकती, उससे कम पर भी उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो 500 रुपये पर बेच सकती है देन व्हाट इज़ द पर्पस टू सेल द प्रोडक्ट एट 490। क्यों बेचा जाए जब वो 500 पर बेच सकती है? अब हम आगे डिस्कस करें। सपोज करिए कि एक शॉर्ट रन में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म्स को एबनॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल सकता है और लॉसेस भी मिल सकते हैं। अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। नॉर्मल प्रॉफिट इज़ अ सिचुएशन व्हेन द फर्म इज़ कैपेबल टू चार्ज सच अ प्राइस सो दैट ही मे कवर हिज एंटायर कॉस्ट। मीन्स AR इज इक्वल टू AC। आपने पढ़ा AR इज इक्वल टू P, AC रेफर्स टू द एवरेज कॉस्ट। सो फर्म अगर अपने पूरे इतना प्राइस कवर कर पा रही है जिससे वो एवरेज कॉस्ट कवर कर सके, जैसे मैं ये लिख रही हूँ, दिस इज AR इज इक्वल टू P इज इक्वल टू AC। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब सेकेंड सिचुएशन देखिए, दिस इज अबाउट द एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द फर्म इज कैपेबल टू
चार्ज द प्राइस लेवल विच इज़ हायर देन इट्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा वो कवर कर पा रहा है. सपोज करिए कि प्राइस लेवल डिटरमाइन हुआ है 500 रुपीज़ पर और उसकी कॉस्ट जो थी वो 470 थी, मतलब उसको पर यूनिट 30 रुपीज़ बच रहे हैं. सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट, also known as supernormal profit. Clear? Now, what's about the third situation? This is about the losses. When the firm is capable to cover less than the cost, means the firm is not capable to cover entire cost, means average revenue or price of the commodity is less than average cost. So, what we conclude that there may arise three situations: one, abnormal profit; two, normal profit; three, losses. So this is the situation of short run. सिर्फ short period ऐसा time होता है जहाँ पर कुछ fixed factors का ऑब्स्टिकल्स होते हैं, इस वजह से फर्म को इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन मिल सकती है. दिस इज द एबनॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज द नॉर्मल प्रॉफिट, एंड द थर्ड वन, दिस इज अबाउट द losses. Now, what happens when all the firms are getting abnormal profit during the short period? The new firms get attracted and will join the industry. When the new firms join the industry, there will increase in the number of firms, resulting increase in market supply. Whenever there is excess of market supply, the profit will come down. That is, the abnormal profit will be shifted into normal profit. Got the concept? ध्यान से समझिए, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर शॉर्ट पीरियड में एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, इट मीन्स न्यू फर्म्स विल गेट अट्रैक्टेड एंड विल जॉइन द इंडस्ट्री, रिजल्टिंग increase in number of firms, resulting increase in market supply, resulting decrease in price level, and the abnormal profit will turn into normal profit. Clear? This is the first case. Now, what's about the losses? If the firms under perfect competition are getting losses during short period, few firms or some of the existing firms will leave the industry, resulting reduction in number of firms, resulting reduction in market supply. Hence, the price of the commodity will shoot up and the losses will be converted into normal profit. So, अब आपने क्या यहाँ से conclusion निकाला? Because of this very feature, that is, because of this very feature, that is the free exit and entry of firms, all the firms under perfect competition get normal profit during long period. आपने इस पॉइंट को दो कॉन्सेप्ट्स में स्टडी करना है कि अगर फर्म्स शॉर्ट पीरियड में एबनॉर्मल प्रॉफिट ले रही हैं तो क्या होगा, और अगर शॉर्ट पीरियड में फर्म्स को लॉस हो रहा है तो क्या होगा, और रिजल्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि लॉन्ग पीरियड में ऑल द फर्म्स विल गेट नॉर्मल प्रॉफिट ड्यूरिंग under perfect competition. Got the concept? Move to the next. This is about the perfect knowledge among buyers and sellers. As we have already studied that firm is a price taker. All the firms are producing homogeneous product. That's why it is assumed that under perfect competition, all the buyers as well as all the sellers have complete knowledge about the product, about the working of the product, about the supply of the product, about the demand of the product, about द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. सब कुछ पता है. यहाँ से अब इम्प्लीकेशन हमारे पास क्या निकलती है? बिकॉज ऑफ द परफेक्ट नॉलेज अमंग द बायर्स एंड सेलर्स, नो फर्म कैन चार्ज प्राइस हायर देन द प्रिवेलिंग प्राइस लेवल. अभी हमने डिस्कस किया कि मार्केट प्राइस जो है वो इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है. अगर इंडस्ट्री ने 500 रुपये का प्राइस रख दिया है पर यूनिट का, तो कोई भी उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता, बिकॉज ऑल द बायर्स हैव complete or perfect knowledge about the price, about the nature, about the working, about the shape of the product. Clear? So this is all about the perfect knowledge among buyers and sellers. Now move to the next. This is about the no transport cost. अगर सामान मुझे जहाँ भी सस्ता मिल रहा है मैं वहाँ से उस सामान को खरीद सकती हूँ. मुझे अगर बीगड़ में एक पेन 10 रुपये का मिल रहा है और फतेहाबाद में मुझे पेन 15 रुपये का मिल रहा है, तो मैं भीगड़ आकर उस पेन को ले सकती हूँ. हम यहाँ एज्यूम करके चल रहे हैं कि देयर इज़ नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. इसका मतलब ये है कि एक बायर को जहाँ पर भी प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा वो वहीं से जाकर ले लेगा. इट मीन्स द सेलर
इज़ नॉट कैपेबल टू चार्ज हायर प्राइस दैन द प्रिवेलिंग प्राइस, क्योंकि उसको पता है बायर वहीं से जाकर खरीदेगा जहाँ से उसको सस्ता मिलेगा. सो दिस फीचर मीन्स दैट ऑल द फर्म्स हैव इक्वल एक्सेस टू द मार्केट. द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड लोकली, देयरफॉर देयर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मार्केट टू अदर. वो भी जहाँ बेचना चाहता है उसको बेच सकता है, फर्म को कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसके लिए बेयर नहीं करना पड़ेगा. देन परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मोबिलिटी वर्ड का मतलब होता है शिफ्टिंग. अगर एक फर्म को किसी इंडस्ट्री में प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल रहा, नॉर्मल बेनिफिट नहीं मिल रहा, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो फर्म क्या कर सकती है, उस इंडस्ट्री को छोड़कर दूसरी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकती है. इसमें परफेक्ट मोबिलिटी है. फैक्टर्स कैन बी शिफ्ट फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू another industry. There exists geographically and occupationally perfect mobility of factors of production. This implies that the factors of production can move from one place to other and can move from one job to another. मैंने अभी बताया कि अगर मुझे पेन इंडस्ट्री में बेनिफिट नहीं मिल रहा तो मैं अपने सारे रिसोर्सेज को उठाकर किसी गारमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकती हूँ. देन नो प्रमोशनल एंड सेलिंग कॉस्ट. Promotional or selling cost refers to the advertisement cost. These are the costs that are meant for the promotion of sale of a commodity. लेकिन हम यहाँ क्या मानकर चल रहे हैं, because all the buyers have perfect knowledge about the product. सब कुछ पता है. Then what is the purpose of advertisement cost? बताने की और ज़रूरत ही क्या है. मतलब यहाँ पर किसी तरह की कोई promotional cost या selling cost नहीं होती. Then what's about the demand curve? Let's start discussing about how the price of the commodity is determined under perfect competition. Dear students, as you have already studied in the theory of demand, that demand curve is negatively sloped curve. Clear? And what's about the supply curve? This is a positively sloped curve, where the demand and supply intersect each other. This will become the point of equilibrium. And corresponding to this equilibrium point, OP will be the equilibrium price and OQ will be the equilibrium quantity. Clear? And this OP price will be the price level which is determined by the industry, and an individual firm can sell the produce whatever produce it wants to sell at this prevailing price level. वो इस प्राइस लेवल को नहीं बदल सकता, लेकिन इस प्राइस लेवल पर वो कितना बेचेगा ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना चाहे वो बेच सकता है. सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस diagram that the firm's demand curve under perfect competition is perfectly elastic. The firm's demand curve under perfect competition is perfectly elastic. It means the firm can sell whatever quantity it wishes to sell only at the prevailing price level. इससे ज़्यादा नहीं कर सकता. क्यों? Because if a firm increases the price level from this very price, the buyers will definitely shift to अदर फर्म्स. क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, बहुत सारे सेलर्स हैं. अगर एक सेलर ज़्यादा महंगा बेचने की कोशिश करेगा तो बायर्स फटाफट कहाँ चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे. और अगर एक फर्म इससे कम पर बेचता है तो ये भी उसकी एक इरैशनल पॉलिसी डिसीजन होगा. क्यों? क्योंकि जब वो ज़्यादा पर बेच सकता है तो फिर वो कम पर क्यों बेचना चाहता है. और दूसरी बात, छोटे छोटे सेलर्स हैं. अगर मान लो कि वो 450 में बेचने की कोशिश करता है, पहली बात तो उसको क्या दिक्कत आएगी, अभी मैं आपको यही पॉइंट बता रही हूँ कि फर्म इट विल बिकम एन इरैशनल पॉलिसी टू सेल द प्रोड्यूस बिलो द प्रिवेलिंग प्राइस लेवल. मतलब 500 रुपये प्राइस की जगह वो 500 से कम बेचे तो वो क्यों नहीं बेच सकता. पहली बात, वो बहुत छोटी फर्म है, स्मॉल फर्म्स हैं, ये ध्यान रखना आपने. लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स हैं, छोटी छोटी फर्म्स हैं. मान लो कि उसने कम 450 रुपये पर बेचना शुरू किया, बहुत सारे बायर्स वहाँ पहुँच गए. वो इतनी छोटी फर्म है कि वो सबके ऑर्डर को पूरा नहीं कर सकती. मतलब उसको कम में बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस इंक्रीज्ड डिमांड का वो बेनिफिट नहीं उठा पाएगी. दूसरी बात, अगर फर्म 500 रुपये पर ही बेच सकती है, देन व्हाट्स द पर्पस टू सेल द कमोडिटी बिलो ₹500. जब मेरा प्रोडक्ट कोई 500 रुपये में खरीदने को ही तैयार है तो मैं 450 में क्यों बेचूं. एंड द थर्ड वन, दिस इज अगेन अ वेरी the third one, this is related with because the firms are selling the homogeneous products. तो उसको कम पर अगर वो बेचेगा, और all the firms are selling homogeneous product, and it is already discussed that all the firms under perfect competition are getting normal profit. Normal profit का मतलब होता है
P इज इक्वल टू ए सी, वो सिर्फ अपनी कॉस्ट ही कवर कर पा रहा है। तो अगर वो अपनी कॉस्ट ही कवर कर पा रहा है तो प्राइस को कम क्यों करे? अगर वो प्राइस को कम करेगा तो उसको लॉसेस मिलने शुरू हो जाएंगे। मीन्स हम ये मानकर चल रहे हैं कि दिस इज द perfectly elastic demand curve. It shows the firm can sell whatever quantity it wishes to sell only at the prevailing price level. The firm cannot sell the price commodity above this price level because of the homogeneity of product. The buyers will shift to other firms, and selling the product below this price will become an irrational policy for the seller. So this is all about this chapter and this is the explanation of this very diagram. आपने इस diagram को बहुत अच्छे से prepare करना है. This is all about the explanation of this very diagram. Under perfect competition, a demand curve of the firm is perfectly elastic because the firms can sell any amount of goods at the prevailing price level. So even a small increase in price will lead to zero demand. This indicates that the firm has no control over price. We have already discussed about this. On the other hand, large firms under monopolistic competition deals with differentiated products. आपको करना नहीं है मोनोपोलिस्टिक के बारे में, तो इसको डिस्कस मत करिए. डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड एंड एंजॉय, ये आपको नहीं करना. मोनोपोली पार के बारे में आपका कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक रहना चाहिए. आप एक तो यहाँ तक प्रिपेयर करोगे, यहाँ तक, और दूसरा आप प्रिपेयर करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक. क्लियर? बस, और आपको कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. वैसे बेटर है कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट को भी मत करिए, ये सारा कॉन्सेप्ट भी मत करिए क्योंकि ये हमारे सिलेबस में से डिलीट हो गया. तो आपने ये सब नहीं करना. आपको कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है, कुछ आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. क्लियर बेटा? सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वेरी चैप्टर. You will get assignments very soon for these two chapters, that is the theory of supply and perfect competition. In the next video, we will discuss about the next chapter. Okay, students? So, have a wonderful day. Be sincere. Do your work properly. Goodbye, dear students.